नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम फिर से मिल रहे हैं हमारे चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स में। इसमें हम देख रहे थे ईसीजी ट्यूटोरियल्स। आज का ईसीजी का ये 17 ट्यूटोरियल इज़ ऑन हाइपोकैलेमिया। एक्चुअली कुछ प्लान में चेंज करना पड़ा। आई वॉज गोइंग टू कवर ऑल द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इन अ सिंगल ईसीजी लेक्चर ऑफ से 30 मिनट्स, जिसमें हाइपर हाइपोकैलेमिया, हाइपर हाइपोमैग्नीसिमिया और हाइपो हाइपर कैल्सीमिया कवर किया था। परंतु हमारे जो स्टाफ है और कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनका ऐसा अपेक्षा थी कि आई शुड कवर ईच आयन इन डिटेल, स्पेशली पोटेशियम, सो दैट उनको कई बार थीसिस रहता है नर्सेस को पोटेशियम के बारे में। So instead of covering only ECG in potassium, I am covering as a general topic of hypo and hyperkalemia. So please bear with me. हम शुरू करते हैं hypokalemia. Potassium is predominantly intracellular ion. मतलब पोटेशियम अधिकतर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में बहुत कम रहता है, only 2%. And maximum is in the intracellular compartment, 98%. Of that intracellular compartment, most of the potassium is in the muscle, and then small amount in RBC, bone and liver. So the excretion is 90% through the kidneys and 10% through the stools. And potassium daily intake, it's say 100 milliequivalents. आप अंदाज से 60 to 140 आप ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए consider about 100 milliequivalents per day. So लगभग इंट्रासेलुलर स्पेस में there is 3500 milliequivalents potassium, लगभग 50 milliequivalents per kilogram in say 70 kg person. And in the extracellular compartment there is only 2%, that is 70 milliequivalents. The serum level 3.5 से 5.5 milliequivalents per liter. और जब भी पोटेशियम सिरम में whenever there is insulin या बीटा 2 stimulation और अल्कलोसिस, तो क्या होता है, ये पोटेशियम shifts from extracellular compartment to intracellular compartment. Naturally, therefore, ये जो चीजें हैं, बीटा 2 stimulation, insulin, this is used to reduce potassium level in serum. फिर से वही kidney excretion 90 milliequivalents and colonic excretion 10 milliequivalents. जितना पोटेशियम फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, उसका 70% is reabsorbed in proximal convoluted tubule of kidney, 20% is reabsorbed in thick ascending loop of Henle. तो कुल मिला के 70 plus 20 मतलब 90% of जितना पोटेशियम फिल्टर हुआ था वो वापस ले लिया जाता है बॉडी से. And then in the distal convoluted tubule, potassium is secreted back. Right? So potassium secreted back is an active process. So it is secreted back depending on the level of dietary potassium intake, depending on acid-base balance, depending on the flow rate, and depending on the aldosterone. Aldosterone ऐसा mineral corticoid है जो सोडियम रिटेन करके पोटेशियम यूरिन में डाल देता है. So if there is aldosterone excess, then more potassium body will lose. Renal potassium loss will increase. तो फाइनली ये सिक्रेशन के बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट में थोड़ा सा रीअब्सॉर्प्शन होता है. तो कुल मिला के एक्सक्रीशन कैन बी 2% to 100% डिपेंडिंग ऑन दीस वेरियस फैक्टर्स. ये एक बिजी स्लाइड है, मेरे को पूरा डिस्कस नहीं करना, मेरे को बस एक ही चीज बताना है कि अल्डोस्टेरोन ये जो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है, ये हार्मोन जाके व्हाट डज इट डू, इट रिटेन्स सोडियम एंड एक्सक्रीट्स पोटेशियम. राइट? So, अगर अपने को पोटेशियम रोकना है या पोटेशियम एक्सक्रीशन कम करना है, तो we have to give aldosterone blockers like spironolactone और eplerenone. Now, ये जो स्लाइड में y एक्सिस में this is the serum potassium level, 2 milliequivalents, 4 milliequivalents, 5 milliequivalents and 8 milliequivalents. यहाँ जो 0 है, this is the normal optimum body store of potassium. यहाँ से this is -300, मतलब पोटेशियम बॉडी स्टोर्स कम हो रहे हैं, -600, -900, यहाँ पे +300 पोटेशियम बॉडी स्टोर्स में एक्सेस हो रहा है. Now from the graph
यू कैन मेक आउट कि 4 का अगर 3 मतलब 1 मिली इक्विवेलेंट सीरम पोटेशियम कम हुआ तो लगभग 200 से 400 मिली इक्विवेलेंट्स बॉडी स्टोर्स कम होते हैं। वाइल अगर 1 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम बढ़ता है लगभग 3.5 से 4.5 5.5 हो गया तो लगभग ओनली 100 मिली इक्विवेलेंट्स बॉडी स्टोर्स पोटेशियम के बढ़ते हैं, राइट? So in an average sized adult with a normal plasma potassium, a total body K+ deficit of 200 to 400 is required to produce 1 milliequivalent decrease. 1 milliequivalent decrease के लिए total body stores में 200 से 400 का घटा होना पड़ता है, या 1 milliequivalent सीरम पोटेशियम बढ़ने के लिए लगभग 100 से 200 मतलब आधा का इजाफा होना पड़ता है in total body stores. Therefore, for a given change in serum potassium, the change in total body potassium is twofold greater on the hypokalemia side than on the hyperkalemia side, right? अभी कुछ causes डिस्कस किए जो common causes of hypokalemia, पोटेशियम कम होने के। एक तो decreased intake, right? फिर increased entry into cells। हमने जब डिस्कस किया था कि there are some things which increase the entry of the cells into intracellular space. One of them is increased pH. अगर अल्कलोसिस हुआ तो पोटेशियम लेवल कम होगी, इंट्रासेलुलर इंक्रीज होगा। इंसुलिन encourages the entry of potassium into cells, increase beta agonist activity. For example, एक पेशेंट को अपन ने एस्पिरिन से नेबुलाइज किया तो his serum potassium will drop down. हाइपोकैलेमिक पीरियडिक पैरालिसिस ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स रहते हैं तो सडनली सीरम पोटेशियम कम होता है। इंक्रीज इन ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड क्लोरोक्विन इंटॉक्सिकेशन। सो दीज आर द कॉजेस विद इंक्रीज व्हिच इंक्रीज द एंट्री ऑफ पोटेशियम इनटू सेल्स। फिर इंक्रीज जीआई लॉसेस, दिस इज कॉमन सेंस, वॉमिटिंग, डायरिया। जो पेशेंट्स को ट्यूब ड्रेनेज होती है, फॉर एग्जांपल कोलोस्टोमी ट्यूब है और इलियोस्टोमी, दे लूज अ लॉट ऑफ पोटेशियम थ्रू द ट्यूब ड्रेनेज और laxity of limbs. फिर increased urinary losses, one of the most common causes is diuretics. फिर mineral corticoid excess, जैसा मैंने बताया था, aldosterone causes loss of potassium, loss of GI secretion, non-absorbable anions, renal tubular acidosis is one of the rare but important causes of hypokalemia. Hypomagnesemia, this is important. अगर magnesium कम है तो it will not allow kidneys to retain potassium. इसलिए if the patient has hypokalemia and hypomagnesemia, बाद में आएगा, you have to correct magnesium as well. बाकी amphotericin B is an antifungal drug which causes hypokalemia and other reasons. dialysis से पोटेशियम कम होता है। In fact, डायलिसिस का एक इंडिकेशन है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ना is indication for dialysis. So dialysis reduces potassium, increased sweat losses and plasmapheresis. Now there is a rough correlation between the labs and the disease severity. मतलब सीरम पोटेशियम और सीरम पोटेशियम से कम होने से सिम्टम्स आना, इसमें लूज कोरिलेशन है, रफ कोरिलेशन है। जैसे नॉर्मल पोटेशियम लेवल is 3.5 to 5 millicuries per liter. The patient is naturally asymptomatic. This is normal. 3 to 3.5. Patient is still asymptomatic. 2.5 to 3. इसमें भी mostly the patient is asymptomatic, may have mild symptoms. कभी थोड़ा सा smooth muscle dysfunction हो रहा है, paralytic areas होने लगा, या थोड़े muscle cramps आने लगे. But predominantly symptoms चालू होते हैं जब potassium is less than 2.5. So if वैसा सिनेरियो है कि पेशेंट का पोटेशियम कम हो सकता है और ये मसल के सिम्टम आने लगते हैं, दैट टाइम यू शुड गेट अलर्ट बिकॉज दिस इज द डेंजरस लेवल ऑफ पोटेशियम। फिर सिम्टम्स आने लगते हैं, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, हार्ट के अरिथमियाज, हार्ट फेलियर, रैप्टोमाइलिसिस। अभी अपन डिटेल में देखते हैं। शुरुआत करते हैं मसल के प्रॉब्लम से, बिकॉज प्रोडोमिनेंटली जैसा मैंने देखा पोटेशियम इज एन इंट्रासेलुलर आयन इनसाइड द मसल। तो प्रॉब्लम शुरू होता है मसल वीकनेस से जब पोटेशियम लेस देन 2.5 हो जाता है। शुरुआत होती है मसल क्रैम्प्स, रैप्टोमाइलिसिस। रैप्टोमाइलिसिस मतलब मसल ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, पोटेशियम रिलीज होता है। इसलिए रैप्टोमाइलिसिस हुआ और आपने पोटेशियम किया तो थोड़ा सा पोटेशियम पता चला 3.5 आया, जबकि एक्चुअली इट इज लेस देन 2.5। ये कभी-कभी फॉल्स कैन मास्क द सिवियरिटी ऑफ अंडरलाइंग डिसीज, अंडरलाइंग हाइपोकैलेमिया। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो
तो it can cause respiratory failure and even death. GI muscles smooth muscle dysfunction होने लगा तो patient may have dysfunction, distension, nausea, vomiting, subacute intestinal obstruction, paralytic ileus, pseudo obstruction. किडनी पे भी असर पड़ता है. There could be impaired concentrating ability, leading to increased bicarb reabsorption and altered sodium reabsorption. है ना, पोटेशियम कम होने से सोडियम का reabsorption भी अल्टर होता है. So patient can also have hypokalemic nephropathy and also have increased blood pressure and decreased phosphate reabsorption. But the most dangerous effects are on the heart. So there are variety of arrhythmias. बहुत सारे arrhythmias हो सकते हैं, right from atrial ectopic. अभी अपना next कुछ lectures बाद we are starting on the conduction problem. So we will see what is an atrial ectopic. So atrial ectopic, ventricular ectopic, sinus bradycardia, heart rate कम होना, paroxysmal atrial tachycardia, AV block, junctional tachycardia, VT मतलब ventricular tachycardia और VF, ventricular fibrillation. So hypokalemia produces कुछ characteristic changes ECG में मिलते हैं. ऐसा नहीं कि they always correlate with the serum potassium, but still. And one important thing is hypokalemia alone usually does not produce serious ventricular arrhythmias unless it is associated with some other problem like organic heart disease or some antiarrhythmic drugs which cause long QT, or say the patient is on digitalis, or the patient has other disorder like hypomagnesemia. जब ऐसा कुछ होता है तो फिर गंभीर cardiac conduction problems arrhythmias होते हैं. You can see from this ECG, this is the sinus ECG, and suddenly the patient has developed ventricular tachycardia. Now patient को अगर hypokalemia हो गया तो there are detailed algorithms available, but हम for a working diagnosis बनाने के लिए एक simplified algorithm है. For example, if the patient has hypokalemia, पहले rule out transcellular shift. Transcellular shift अपन ने देखा था ऐसी चीजें जिससे पोटेशियम सेल के अंदर जाता है. Common examples are insulin infusion, then beta 2 agonist और alkalosis. So ऐसा कुछ होता है, chloroquine toxicity. तो ऐसा कुछ होता है तो पोटेशियम अंदर जाता है. तो अगर वो causes है कि पहले देख लो. अगर वो causes नहीं है, then do urine potassium. So urine potassium you can do 24-hour urine potassium, which is more accurate, but 24 घंटा लगता है उसमें यूरिन कलेक्ट करने के लिए. Or you can do spot potassium, right? We'll come to it later on. तो अगर यूरिन पोटेशियम is less than 30, मतलब इससे क्या तय हो जाता है कि kidney is not losing potassium, then the cause could be something like a diarrhea. If the potassium is more, मतलब kidney is losing potassium, then do urinary chloride. If urinary chloride भी ज़्यादा है, more than 25, मतलब पोटेशियम भी एक्सक्रीट ज्यादा करे किडनी और क्लोराइड भी एक्सक्रीट ज्यादा करे. सो कॉमन कॉजेस आर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एंड डायरेटिक्स. परंतु अगर क्लोराइड एक्सक्रीशन कम है, पोटेशियम एक्सक्रीशन ज्यादा है पर क्लोराइड एक्सक्रीशन कम है, then it could be alkalosis or nasogastric tube drainage. So there's a basic flow algorithm. Degree of hypokalemia can be mild when it is between 3 to 3.4, 2 to 2.5 to 2.9 is moderate, and anything less than 2.4 is severe hypokalemia. What are the ECG changes in hypokalemia? Right? Progressive diminution with eventual disappearance of T wave. Right? ये T wave है वो धीरे-धीरे invert होती, छोटी होती और धीरे-धीरे गायब हो जाती. So the main change is in the T wave. Progressive increase in the amplitude of U wave. So U wave increases in amplitude. Now there could be first and second degree heart block. We'll come to it. And there is depression of ST segment. Right? So T wave depression and inversion and decrease in the amplitude and eventual loss of T wave and increase in the amplitude of U wave and ST depression. These are the main three changes. फिर से आप देख सकते हैं, this is the normal ECG, this is the ST segment, T wave and a small U wave. यहाँ पे देखो T बहुत छोटी हो गई है and the U wave is predominant. In fact, some people can confuse this as the main T wave. Why? This is not the main T wave, this is the T wave. And notice the ST depression. Right? Sometimes there could be slight peaking of T wave, but ये जरूरी नहीं हो.
जैसे जैसे पोटेशियम और कम होते जाता है, यू कैन सी प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ईसीजी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3.9 मिली इक्विवेलेंट, यहाँ पे T है, U भी बड़ा हो गया बट U से T बढ़ी है, हाँ, सो दिस इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। जैसे 2.7 हो गया, यू कैन सी T is becoming small and ST started depressing and you can see a tall U wave। and जब 1.3 C में हाइपोकैलेमिया हो गया तो T remains as a bump in the ST segment, T गायब ही हो गया, ये ST segment में एक छोटा सा बम्प दिखता है, that you call a T wave। so basically what you see a large wave, that's not T but U wave। फिर से रिपीटेशन, T wave shrinks and inverts, enlarged T wave, prolong QTU interval, ये बाद में आएगा। ये जो इंटरवल है QT इंटरवल प्रोलॉन्ग होने के बजाय QU इंटरवल प्रोलॉन्ग होती, जिसको अपन या मशीन भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है एज QT इंटरवल, आएगा आगे। With the decrease in potassium, U wave increases in magnitude. With lower absent T wave, U wave may be mistaken as T wave। यहाँ पे देखो ये जो है ये बड़ी, this is the U wave, this could be mistaken as T wave। so ये जो QT interval है, beginning of Q to end of T, तो this is not T wave, this is U wave, so this is actually QU interval। तो लोगों को लगेगा, या कभी कोई मशीन कंप्यूटराइज्ड मशीन है तो वो भी इंटरप्रेट करता है कि QT prolongation, जबकि this is U wave। now first and second degree heart block। first degree heart block मतलब क्या, current takes time, more time to reach ventricle from the atria। so atria का depolarization क्या होता है, P wave, ventricular depolarization QRS, तो PR interval prolong होती है। तो कितनी prolong होती, 5 small squares या 0.2 seconds से ज्यादा। अभी ये देखो, ये P wave यहाँ चालू है, ये P wave यहाँ चालू है और ये Q wave यहाँ चालू है, तो यहाँ पे कितना, इसमें P wave प्लस PR interval, PR segment दोनों गिना जाता है। so this is definitely more than 5 small squares, so definitely this is the first degree AV block। first degree AV block is common with low levels of potassium। PR prolongation, P wave encroaches on the preceding U wave। तो यहाँ पे देखो ये P wave almost U के पास आई है, तो जो कैजुअली ECG देखता है उसको लगेगा कि ये T wave है और ये U wave है, बट जबकि ये U wave है, T wave is absent, this is U wave and this is P wave। and ऐसा तब ज्यादा होता है जब there is associated second degree heart block। now we will come to blocks later, but जैसा कि हमने previous एक आध ECG लेक्चर में डिस्कस किया था, what is second degree heart block, P wave के बाद QRS का न आना, that is second degree heart block। मतलब P wave उसके बाद QRS is absent, मतलब करंट एट्रिया से वेंट्रिकल जाता ही नहीं आगे। उसमें दो प्रकार रहते हैं, टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मोबिट्स टाइप 1। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पीआर सेगमेंट लंबी लंबी होती जाती है एंड फाइनली क्यूआरएस आता ही नहीं एक बीट में, दैट इज कॉल्ड एज मोबिट्स टाइप 1 या वेनके बैक ब्लॉक। और मोबिट्स टाइप 2 में ऐसा कुछ नहीं होता, सडनली पी के बाद क्यूआरएस आता नहीं। यहां पे देखो क्या हो रहा है, दिस इज द पीआर सेगमेंट लंबी हो गई, ये पीआर सेगमेंट और लंबी हो गई, यहां पीआर सेगमेंट और लंबी हो गई और उसके बाद पी के बाद क्यूआरएस गायब है। सो देयर इज ग्रेजुअली बीट टू बीट elongation of the PR segment and finally P is not followed by QRS। so this is type 1 mobids या Wenke back second degree heart block। ये याद रखना के लिए बनाए गए हैं पुश एंड पुल इफेक्ट। जब हाइपोकैलेमिया, ये जो जैसे ECG आप ECG को उंगली से T wave कैसे दबाओ, so T wave goes down and eventually is absent, this is called the push effect। T wave inversion, ST depression and prominent U wave। so this become, अगर आप T wave के ऊपर ऐसा उंगली दबा दिए तो जो ECG में परिवर्तन आएगा that is the change of hypokalemia। while इसमें hyperkalemia में T को पकड़ के ऐसा खींचो, tented T waves, peak T waves, P wave flattening, PR prolongation and wide QRS। so this is called the push and pull effect। तो जब भी आपको अगर याद नहीं रहता तो you can remember this diagram। push मतलब hypokalemia, pull tall T is hyperkalemia। now there are many times when hypokalemia is associated with hypomagnesemia। hypokalemia may be associated with hypomagnesemia, magnesium depletion, especially
in people who are on diuretics or those having diarrhea. So जब ये कॉम्बिनेशन रहता है तब खतरनाक अरिथमिया हो सकते हैं, like Torsades de Pointes. particularly ऐसे पेशेंट में जिनको ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं जिनसे QT प्रोलॉन्गेशन होता है. फॉर एग्जांपल सिंपल ड्रग लाइक पेशेंट इज हैविंग डायरिया, वॉमिटिंग एंड आपने उसको डोम्पेराडोल भी देके रखा है. पेशेंट है हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीसिमिया एंड सच पेशेंट कैन डेवलप टॉर्साइड. राइट. इन एडिशन टू डायरेक्ट क्लोरीन इफेक्ट, हाइपोमैग्नीसिमिया कॉजेस इंक्रीज यूरिनरी पोटेशियम लॉस. तो हाइपोमैग्नीसिमिया से क्या होता है, यूरिनरी पोटेशियम लॉस भी बढ़ता है. राइट. सो इट प्रोपोगेट्स हाइपोकैलेमिया. जब तक मैग्नीशियम करेक्ट नहीं होगा पोटेशियम भी करेक्ट नहीं होगा. राइट. व्हाट हैपेंस इज सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो हो सकता है दैट इज टॉर्साड डी पॉइंट्स. व्हाट इज टॉर्साड? ये फ्रेंच टर्म है इसलिए इंडियंस इसको प्रोनाउंस करते हैं टॉर्साड डी पॉइंट्स, बट एक्चुअली इट इज फ्रेंच टर्म यूजुअली प्रोनाउंस्ड एज टॉर्साड डी पॉइंट्स. सो इसका मतलब क्या होता है, देयर इज बीट टू बीट चेंज इन द ईसीजी एक्सिस. और जैसा अपन ने बटन डाल के घुमाते ना, छोटे जब बच्चे रहते बटन डाल के रस्सी डाल के घुमाते हैं सर, तो यू गेट स्पिंडल शेप, बीच बीच में सब स्पिंडल शेप आकार दिखता है. तो यू गेट दोस टाइप ऑफ स्पिंडल शेप पैटर्न्स इन ईसीजी. ये स्पिंडल हो गया, फिर स्पिंडल हो गया, ऐसा है ना. एंड देयर इज बीट टू बीट वेरिएशन इन द ईसीजी एक्सिस. तो यहां पे देखो ये साइनस है, यहां मल्टीपल एक्टोपिक्स है ना, क्यूआरएस प्रोलॉन्गेशन हुआ है. You can notice there is no T wave ST depression है, and then suddenly the patient develops Torsades de Pointes, and the treatment of Torsades de Pointes is IV magnesium. Will come to it. Ascertain the cause. जब भी आपके पास पोटेशियम लो पेशेंट आता है, जैसे पेशेंट आपने एबीजी किया है ना, पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट आया, आपने एबीजी किया and you see that potassium is 2.5. Now immediately short history में try to ascertain the cause. History लेके देखो, is the patient on diuretics? Is the patient having diarrhea? Is the patient getting insulin? Was the patient getting insulin infusion? Does the patient have severe alkalosis? Does the patient have any condition like fistula or जैसे GI loss ज़्यादा हो सकता है ना? So just short quick exam and history ले लो. यूरिनरी और GI लॉस, ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो पोटेशियम लॉस हो रहा है यूरिन से हो रहा है क्या और GI से हो रहा है, मतलब डायरिया डायरेटिक्स, ये देख लो. और उसके बाद ऐसे ड्रग हिस्ट्री ले लो, ड्रग्स दैट कैन कॉज पोटेशियम लॉस और इंपॉर्टेंट आर डायरेटिक्स. देन सम ड्रग्स लाइक एंटीफंगल एम्फोटेरेसिन बी एंड क्लोरोक्विन जैसे आपने लिस्ट में देखा. नाउ इफ यू कैन डू 24-hour यूरिन पोटेशियम दैट इज गुड. So if it is less than 30 milliequivalents per day, if it is more than 30 milliequivalents per day, then you are sure कि जो पोटेशियम लॉस हो रहा है किडनी से, तो वो वाले कॉजेज ढूंढो. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप क्या करो, स्पॉट यूरिन पोटेशियम करो. यूरिन लेके ऐसे कुछ मशीन्स आते हैं आजकल, कुछ एबीजी मशीन में भी वो यूरिन से भी पोटेशियम सोडियम कर लेते हैं. तो अगर ऐसा आपके पास मशीन है तो यू कैन इजीली डू स्पॉट यूरिन पोटेशियम. एंड इफ इट इज लेस देन 15 milliequivalents per liter, then kidney के कारण urinary losses are ruled out. Right? So you get an idea. So what are the lab reports you have to ask to the patient? है ना, एक तो complete blood count करना है, ये सब आयंस करना है आपको, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, PO2, बाइकार्ब, ये तो एबीजी में आ जाएगा. Then obviously किडनी फंक्शन देखने के लिए यूरिया क्रिएटिनिन. CPK बढ़ता है जब there is muscle damage. So पोटेशियम बहुत कम होता है तो rhabdomyolysis होता है, so CPK increases. ABG gives us an idea about the alkalosis. Urine for potassium chloride अपन देख चुके हैं कि जो algorithm था हाइपोकैलेमिया का कि यूरिन पोटेशियम क्यों देखना, क्लोराइड क्यों देखना, क्रिएटिनिन क्यों देखना, and finally a urine analysis. Now you have to estimate what is the potassium deficit, है ना. Approximately 200 milliequivalents of deficit required to decrease serum potassium. अपन ये देख चुके हैं, जो बीच में ग्राफ दिखाया था ना, पोटेशियम लेवल 4 से 3 मतलब 1 milliequivalent कम होने के लिए लगभग 200 से 400 milliequivalent बॉडी पोटेशियम कम होता है. राइट. सो इन एक्यूट स्टेज पोटेशियम फॉल्स बाय, ये क्रॉनिक स्टेज में होगा, एक्यूट स्टेज में पोटेशियम फॉल्स बाय 0.27 milliequivalent per liter for every 100, मतलब 0.27 लगभग 0.3 मान लो, तो लगभग 1 milliequivalent कम होता है, तो लगभग 300 डेफिसिट है, होल बॉडी डेफिसिट पोटेशियम, एक अंदाजा रहता है.
Then separate consideration on ongoing losses. Suppose the patient को डायरिया हुआ है, right? Suppose patient को intracellular shift हो रही है, patient is on insulin infusion, or patient has severe alkalosis. Then आपको उसके लिए अलग से एड-ऑन पोटेशियम करना है. और lastly, daily requirement of potassium 40 से 120 मिली इक्विवेलेंट रहती है. तो स्पेशली मान लो पेशेंट एनपीएम है, खा पी नहीं रहा, तो आपको पहले पोटेशियम डेफिसिट का पोटेशियम देना है, प्लस ऑनगोइंग लॉसेस का पोटेशियम देना है, प्लस डेली रिक्वायरमेंट 40 से 120 का पोटेशियम देना है. तो इतना सब आपको इवेंचुअली रिप्लेस करना पड़ेगा. दिस इज अनदर डायग्राम. एक 70 किलो का आदमी है एंड 50 मिली इक्विवेलेंट पर केजी, मतलब 3500 मिली इक्विवेलेंट टोटल बॉडी पोटेशियम है उसका. सो अगर उसका पोटेशियम 3 हो जाता है, सीरम पोटेशियम, तो approximate potassium deficit is 175, 5% of total body. And 2.5 हो जाता है तो 350, approximately 10% of total body potassium stores. अगर 2 हो जाता है तो 470 या 15%. And likewise 1.5 तो 720 and 1 है तो 875, लगभग 900 मिली इक्विवेलेंट का लॉस and 25% of whole body potassium is lost. So it gives, ये सब टेबल्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि this gives an idea कि आपका पोटेशियम कितना, how much replacement करना जरूरी है. Now what are the indications for IV potassium, है ना? कब अपने को IV पोटेशियम देना है? क्योंकि अगर पोटेशियम थोड़ा बहुत कम है तो you can give potassium chloride oral solution. IV पोटेशियम if there are ECG changes, है ना? ECG changes ज्यादा आने लगते हैं जब 2.4 या 2.5 से पोटेशियम कम होता है. अगर देयर इज सीवियर न्यूरोमस्कुलर फटीग आता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन कम हो जाता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो जाती है, सीवियर क्रैम्प्स आने लगे, देन पोटेशियम इज डेफिनेटली लेस देन 2.4 एंड यू हैव टू रिप्लेस. इफ देयर इज डायफ्रामेटिक वीकनेस, डायफ्राम ये जो मसल है ये अपना रेस्पिरेशन चलाता है ना? सो इफ डायफ्रामेटिक वीकनेस इज देयर, दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, पेशेंट हैज टू बी इंट्यूबेटेड, वेंटिलेटेड एंड पोटेशियम हैज टू बी करेक्टेड IV. दिस इज रेस्पिरेटरी फेलियर. अगर पेशेंट इज ऑन डिगॉक्सिन और एंटीएरिथमिक ड्रग, हार्ट के रिदम की कोई प्रॉब्लम्स है उसको पहले से, और देयर इज ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज, पेशेंट हैज एमाइड इश्केमिक हार्ट डिसीज, तो आपको पोटेशियम, यू हैव टू कीप पोटेशियम अराउंड 4. यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव हाइपो और हाइपरकैलेमिया इन अ पेशेंट विद ऑर्गेनिक हार्ट प्रॉब्लम. सीरम पोटेशियम लेस देन 3, है ना? तो सिंपल रूल, 3 के नीचे पोटेशियम है तो IV रिप्लेस करना ही करना है, केवल ओरल रिप्लेस विल नॉट सफाइस. And lastly, whenever there are diabetic emergencies, for example, diabetic ketoacidosis or hyperosmolarcoma. Diabetic ketoacidosis is a very common problem. लगभग सभी diabetic ketoacidosis patients में पोटेशियम नॉर्मल रहता है, परंतु 6% पेशेंट में पोटेशियम लोअर साइड में रहता है. So whenever there is low potassium with diabetic ketoacidosis, you have to correct potassium first, fluids and then insulin, right? Some caveats, है ना, हिंदी में जिसको बोलते हैं खुट्टे, जो खुट्टों को आपको याद रखना चाहिए ताकि पेशेंट के डीलिंग में कोई गलतियां ना हो. पेशेंट्स विद हाइपोकैलेमिया में आल्सो हैव हाइपोमैग्नीसीमिया. जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से पोटेशियम लॉस ज्यादा होता है यूरिन में. सो आल्सो डू सीरम मैग्नीशियम, या कभी-कभी एम्पिरिकली भी आपको वैसे हिस्ट्री से लग रहा है तो यू कैन करेक्ट मैग्नीशियम. सो केवल पोटेशियम देने से काम नहीं चलेगा, रिप्लेस मैग्नीशियम आल्सो. नंबर 1. नंबर 2, whenever there is increased symptomatic tone, जब ऐसा लगता है कि sympathetic tone ज्यादा है और उससे hypokalemia हो रहा है, तो you can give a small amount of beta blocker, especially non-specific beta blocker like propranolol, Inderal, है ना? तो पोटेशियम होल्ड करने में मदद करेगा. फिर महत्वपूर्ण चीज, complication of replacing potassium. There are some conditions which cause dangerously low potassium, like hypokalemic periodic paralysis और thyrotoxic periodic paralysis. ये ऐसे प्रॉब्लम्स है, कुछ जीन रिलेटेड है, कुछ एंटीबॉडी रिलेटेड है, तो उससे क्या होता है कि सडन सीवियर पोटेशियम फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी-कभी कम भी हो जाता है, कभी-कभी बढ़ जाता है. तो अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया आपने भर-भर के पोटेशियम रिप्लेस किया और सडनली पोटेशियम बढ़ गया, तो दैट कैन कॉज हार्ट टू स्टॉप एंड पेशेंट विल डाई, राइट? सो दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन. सो जब भी देयर इज सीवियर हाइपोकैलेमिया इन अ पेशेंट ऑफ हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस या थायरोटॉक्सिक पीरियोडिक पैरालिसिस, तो आपको रिप्लेस करना है और बार-बार पोटेशियम देखना है. एवरी हाफ एन आवर चेक पोटेशियम सो दैट पोटेशियम डज नॉट क्रॉस द डेंजर लेवल. लास्टली, ये पॉइंट हम देख चुके हैं कि whenever there is diabetic ketoacidosis and hypokalemia which occurs in about 6% patient, आपको क्या करना है?
First you have to start fluids and replace potassium. Do not start insulin till the potassium is above 3.3. अगर आप पोटेशियम 3.3 से कम है और आपने इंसुलिन दे दिया तो what will happen? जो पोटेशियम है वो और इंट्रासेलुलर जाएगा, सीरम पोटेशियम लेवल will drop and patient can have cardiac arrhythmias. Now तीन पोटेशियम प्रिपरेशंस है. Most common is potassium chloride, but potassium bicarbonate and potassium phosphate ये भी अवेलेबल है. So bicarbonate तभी दिया जाता है जब पोटेशियम के साथ साथ हाइपोकैलेमिया के साथ साथ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है ना. हमारे यहाँ तो प्रोबेबली दिस इज नॉट अवेलेबल. पोटेशियम फॉस्फेट ये तब दिया जाता है जब साथ में हाइपोफॉस्फेटेमिया भी है. ये रिलेटिवली रेयर है, जैसे प्रॉक्सिमल टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में मिलता है. सो बहुत जगह पोटेशियम फॉस्फेट इज आल्सो नॉट अवेलेबल. द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इंजेक्शन इज पोटेशियम क्लोराइड. और पोटेशियम क्लोराइड ये सबसे अच्छा है देने के लिए बिकॉज पेशेंट्स आर क्लोराइड डिप्रेटेड. मेनी पेशेंट जैसा हमने एल्गोरिथम में देखा था कि पोटेशियम के साथ क्लोराइड भी जाता है, राइट. सो पोटेशियम क्लोराइड देने से दोनों काम होते हैं. दूसरे पोटेशियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट्स ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट से डबल फास्ट रिप्लेस करता है पोटेशियम को. सो पोटेशियम क्लोराइड इज अ बेटर चॉइस एक्सेप्ट इन दीस टू कंडीशंस. नाउ हाउ टू करेक्ट पोटेशियम. पोटेशियम ये हाई रिस्क मेडिसिन में आता है. आजकल एनएबीएस में देखते हैं ना, हाई रिस्क मेडिकेशन. सो व्हाई इट इज अ हाई रिस्क मेडिकेशन? बिकॉज अगर आपने पोटेशियम दे दिया आईवी इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, हार्ट कैन स्टॉप एंड पेशेंट कैन डाई. दूसरा, इफ यू गिव इन अ पेरिफेरल वेन, ये पोटेशियम क्लोराइड जो रहता है हाईली इरिटेंट रहता है, तो पूरी वेन खराब हो जाती है, राइट. सो इसलिए व्हेनेवर पोटेशियम इज 3 to 3.5, हम देख चुके हैं कि 3.5 के नीचे आईवी करेक्शन इज मैंडेटरी. परंतु मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक्स पे है या हार्ट प्रॉब्लम है तो अपने को चांस ले लेना है, तो इवन 3 to 3.5, मान लो 3.1 है, सो इवन इन दैट पेशेंट आई विल ट्राई टू करेक्ट पोटेशियम आईवी. सो उसमें कैसा करते हैं, 1 एम्पूल इज अबाउट 50 ml ऑफ KCl, उसमें 20 मिली इक्विवेलेंट रहता है, राइट. सो यू कैन गिव 1 एम्पूल और 2 एम्पूल इन 1 liter of NS or 1 liter of 0.45 NS and give over 4 to 6 hours. हम लोग कभी-कभी ऐसा भी करते हैं कि 40 मिली इक्विवेलेंट्स इन 250 ml NS डालते हैं and we give at the rate of 50 ml per hour, मतलब 5 घंटे में देते हैं. But what is the recommended? Recommended is 1 to 2 ampules, that is 20 to 40 milli equivalent in 1 liter of NS to be given in 4 to 6 hours. मतलब अगर 4 to 6 hours में देना है आपको तो क्या स्पीड से देना पड़ेगा, लगभग 200 ml पर आवर देना पड़ेगा. सो ये बहुत ज्यादा सलाइन हो जाएगा. जिनको मान लो हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, इनको तो आप ऐसे इतना सलाइन दे नहीं सकते. सो इनको आपको कम वॉल्यूम में देना पड़ता है. तो आप 250 ml NS में 40 मिली इक्विवेलेंट डाल के एंड यू कैन गिव 50 ml per hour over 4 to 6 hours, 5 hours. उसमें यह है कि जब तक आपका पोटेशियम 40 या 60 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं है तब तक आप पेरिफेरल वेन से दे सकते हो. जब आपको 60 मिली इक्विवेलेंट्स या हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम देना है तो आपको सेंट्रल लाइन इज मैंडेटरी. पेरिफेरल वेन से यू कैन नॉट गिव 60 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, राइट. जब सीरम पोटेशियम इज 2.5 to 3 है ना, ये सीवियर मॉडरेट हाइपोकैलेमिया हो गया, देन यू रिक्वायर सेंट्रल लाइन, प्रेफरेबली अ फीमोरल लाइन. मतलब आजकल आईसीयू में फीमोरल लाइन बहुत कम डालते हैं, प्रेडोमिनेंटली सबक्लेवियन या इंटरजुगुलर लाइन डालते हैं. पर वो लाइन से क्या होता है कि अगर पोटेशियम दिया तो डायरेक्ट हार्ट में जाता है. एंड यू नो पोटेशियम इज अ कार्डियक डिप्रेसेंट, राइट. सो जब कार्डियक बाईपास सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, हार्ट के ऊपर कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन डाल देते हैं तो हार्ट रुक जाता है ना. आजकल तो बीटिंग बाईपास करते हैं, बट अदरवाइज इन पंप लेके जब हार्ट सर्जरी करते हैं तब क्या करते हैं कि कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन हार्ट में डालते हैं, हार्ट रुक जाता है, उसको बाईपास सर्जरी करते हैं हार्ट के ऊपर. So what is that cardioplegia solution? Is a high concentration potassium. So what does that implicate? अगर अपन ज्यादा concentration potassium सेंट्रलाइन से दे दिया और डायरेक्ट हार्ट में दे दिया तो हार्ट कैन स्टॉप. इसलिए preferably take a femoral line. And कैसे देना है, 20 मिली इक्विवेलेंट्स in 100 ml, है ना. And then you have to give 5 to 20 मिली इक्विवेलेंट्स per hour by infusion pump, syringe pump, है ना. जब आप इतने कम सॉल्यूशन में आप 20 मिली इक्विवेलेंट दे रहे हो इतने कम अमाउंट में, तब आपको सिरिंज पंप से ही देना है, नहीं तो गलती से फास्ट चला जाएगा तो हादसा हो सकता है.
So now in here you have to use a syringe pump. And lastly, when there is life-threatening arrhythmia, मतलब patient का potassium 2 है and patient is having severe ventricular tachycardia or something like that, then you can give 40 milliequivalents in of KCl for few hours. उसमें आप एक अलग इन्फ्यूजन पंप से सेंट्रलाइन से दो, उस इन्फ्यूजन पंप में कोई फ्लशिंग नहीं होगा, कोई दूसरा इंजेक्शन नहीं जाएगा, कोई दूसरा फ्लूइड नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी आपने फ्लश किया तो जो जा रहा है वो तेजी से अंदर चला जाता है। इसलिए आपको सेपरेट लाइन चाहिए, उस लाइन से कुछ भी फ्लशिंग नहीं चलेगा। देन यू कैन गिव 40 और इवन 60 मिलीक्वारेंट्स वाला जो सॉल्यूशन है वो दे सकते हो थ्रू सेंट्रल लाइन। बट एट द सेम टाइम आपको लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है। एज सून एज पोटेशियम गोज अबव 3.3, स्टॉप दैट and reduce the concentration of potassium in the fluid. ये replacement of magnesium भी मैंने इसमें include कर दिया है, because many times we have to replace magnesium as well. So if there is severe hypomagnesemia, for example patient has torsade, the treatment of torsade जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया is magnesium. तो कैसा दिया जाता है? 1 to 2 grams of magnesium, which is magnesium sulfate, which is 8 to 16 milliequivalents या 4 to 8 millimoles, can be given initially over 2 to 15 minutes. तो आप धीरे-धीरे 2 से 10 मिनट में आप 1 ग्राम मैग्नीशियम दे सकते हो। अगर पेशेंट इस हेमोडायनामिकली अनस्टेबल तो उसको आप रिपीट भी कर सकते हो। अगर पेशेंट स्टेबल है बट पेशेंट हैज सीवियर हाइपोमैग्नेसिमिया लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, then you can give 1 to 2 milligram of magnesium sulfate in 50 to 100 ml of 5% dextrose. Remember, potassium is never corrected in dextrose because dextrose से इंसुलिन सिक्रेट होता है and इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर जाने देता है। इसलिए potassium is always corrected in NS, preferably 0.45 NS. While magnesium you can correct in dextrose over 5 to 60 minutes, right? Follow up with infusion. And अगर simple replacement करना है non-emergency condition में, तो you can give in 4 to 6 grams for 12 to 24 hours. Importantly, इसमें अगर kidney failure है patient को या glomerular filtration rate (EGFR) is less than 30, then you have to reduce the dose of magnesium by half. Right? Once the patient has improved, potassium is above 3, then you can give oral replacement. Simple 10 to 20 milliequivalents of KCl 2 बार या 4 बार. Use caution in patients who are getting ACE inhibitors like Cardace or telmisartan, angiotensin receptor blockers, or the patient who have decreased renal function, decreased GFR. तो उसमें आप potassium correction can be tricky because these can produce hyperkalemia. And lastly, अगर आपको लगता है कि patient is losing potassium through the kidneys, then you can give aldosterone blockers like spironolactone, eplerenone, or eplerenone or amiloride. Right? With this, we end here. Stop here. So we have in this lecture हमने क्या देखा है? Hypokalemia. Not only ECG changes of hypokalemia, but also in general hypokalemic causes और उसके workup and उसका treatment. In next lecture, we'll talk about hyperkalemia. Thanks a lot. Give a thumbs up and do subscribe.